sure. Love it. Infinix smartphones, MTV Roadies, Journey in South Africa, co-powered by CoinSwitch, Buddy Sanitary Pads, Leverage EDU, and Lakme Sun Expert. You'll have easy pictures. Yeah. All right, ladies and gentlemen, पहले सारे contestants अपने लिए तालियां मार लो. Well done, everybody. You did a great job in South Africa. Either side of it. All right, we're gonna have them on either side, and I'm gonna walk with you guys. Okay, are we going to keep the bikes on or off? One sec. There we go. All right. Okay, so yeah, congratulations. Well done, everybody. It looked fantastic. The locations in South Africa, we'll come to you all a little later. But kaisa raha, yaar? I mean, this is what everybody wants to do. I used to go to parties earlier and people would say, I said, what do you do? I'm a roadie. सब ऐसे ही बोलते थे. तो यही तुम सबका भी सपना था ना, I'm a roadie बोलने के लिए. तो अब ये कर दिया टास्क करने कितना मुश्किल कितना इजी लेट्स हैव अ परिचय फर्स्ट एंड देन लेट्स हियर व्हाट यू डिड इन साउथ अफ्रीका या मैन जस्ट वन लाइन इंट्रो परिचय सिंपल योर परिचय My परिचय यस योर इंट्रोडक्शन तो हेलो गाइस माय नेम इज सिद्धार्थ यू कैन कॉल मी सिड यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं सिद्धू सिड सिडी एंड मनोज मेरा बाप का नाम है राइट वो भी चलेगा लेकिन हाँ I'm a roadie we're all roadies season 18 yeah okay so we were like going one by one like that Oh, yeah, but yeah. it's all right So, it's all right we'll and yeah moving on okay so let me just did you have like a tough time मतलब normally roadies में देखते हैं टास्क ना बड़े मुश्किल लगते हैं इतने ही मुश्किल थे जितना सोचा था या नहीं All right, hi, namaskar everyone. My name is Gaurav Alag, and I just want to say, Salil, you're right. बहुत लोगों के लिए ये सपना होता है. Right. And हम में से 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सपना 2 बार जिया है. Yes. Right, A lot so of you all are from the previous season as well. So Absolutely. congratulations everyone So for making it back in. No, I think kudos to everyone, all 20 of us. I mean, I'd love to say that because इस बार challenge भी double था. Yeah. मजा भी double था. Yeah. Journey was insane. We were looking at South Africa, the weather, the tasks, the whole experience. I think it was just very different. I don't think यहाँ पे 10 ex roadies में से कोई भी एक ऐसा कि जो बोलेगा कि journey last time की तरह थी. बिल्कुल नहीं थी. I think well done. You read the entire press brief very well. बहुत बढ़िया काम किया. Absolutely. Well done. Now coming to this side as well. I do my homework well, Salil. You did a brilliant job. Big round of applause for everybody here also. And coming to the light ना बहुत shade में हो आप लोग. So anyone, we just a quick bit here and there. What's your name and how is it, man? क्या बोलती पब्लिक फुल पावर था मचाया है रोडीज के जर्नी पे आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वी ऑल हैव हैड सो माय नेम इज तनिश एंड आई एम फ्रॉम अम्ची मुंबई All right, Tanish, hold it there. You had a great experience. We'll come back to all of you all, but we got a man जिन्होंने आपके लिए experience और भी better बनाया. So we all know who we're talking about, right? Do we know who we're talking about? The real superstar of India. I've come to love him for much more in the last 2 years. I know everyone has too. So ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only, the hero, the big boss man, Sonu Sood.
कैसे हो सोनू सर? Mind blowing. Mind Superb. blowing. I think a bigger round of applause, ladies and gentlemen, हो जाए. All our contestants तो हैं ही, sir. How are you, sir? Blowing, man. Zabardast. Mind blowing. Oh, आपसे मिलके इतना अच्छा लगता है. क्यों ऐसा लगता है कि all the time you are super ready, you are super fit. Love the shoes also, sir. कमाल के ये जूता का शॉट लो यार. Wow, love it. Thank you, man. सोनू सर, कुछ ऐसे स्वीट बच्चे आपके सामने, कुछ सख्त बच्चे आपके सामने, कुछ नटखट, कुछ शायद नॉट सो नटखट. कैसा रहा एक्सपीरियंस सर सबके साथ में? ये साउंड दे रहे दोस्त. आ रही है बात? थोड़ा और साउंड. या ओके. तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये बच्चे नहीं है, हीरोज हैं बॉस. इन्होंने जो 45 डेज में किया है, आई थिंक दे इंस्पायर मी, दे विल इंस्पायर द होल नेशन. दे आर द रियल रॉक स्टार्स एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. सोनू सर, ये टास्क्स वाले जो सिचुएशन होते हैं जी. डरा देते हैं लोगों को. जब मैं फेसबुक पर मीम्स भी देख रहा होता हूँ या फिर फेसबुक पर ये भी देख रहा हूँ तो कैसे करते हैं. आप जब इनसे करवा रहे थे, was the feeling similar to you also? यार ये तो बड़ा मुश्किल है. हर रोज हमें लगता था कि बड़ा मुश्किल है बहुत, लेकिन इन लोगों ने उसको आसान बना दिया. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ. एक जो पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है बंजी जंपिंग के लिए, 216 मीटर का, 216 मीटर्स का. और मुझे तो सिर्फ होस्ट करना था, मुझे कूदना नहीं था. मुझे तो होस्ट करना, हाँ यार अच्छा है, वेरी गुड, अब रुकना नहीं, कूद जाओ, ये सब. तो सब लोग कूद रहे थे, बड़े थे. तो मैं क्या यार कूद जाऊँ क्या, मैं कूदूँ कि नहीं कूदूँ यार, काम तो नहीं है मेरा कूदना. पर आई थिंक इन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं क्या यार बॉस, मैं भी कूदता हूँ. और मैंने भी वहाँ से जंप लगाया. सो आई थिंक दैट मेक्स देम रोडीज, दैट मेक्स millions of people across the nation that they want to be part of these roadies. I think they are the real inspiration. सर हम सब ने तो बचपन से ही देखा है, क्योंकि जैसे कि अंशुल सर भी बता रहे थे, इट्स पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड ऑल्सो. आप भी हमारी उम्र के ही हैं, आपने भी बचपन से देखे थे. उस समय आप देखते थे और कैसा लगता था. नाउ यू नो ऑल ऑफ देम आर नाउ पार्ट ऑफ योर नेट, आपके सेफ्टी नेट के अंदर थे. सो व्हेन दे फर्स्ट कॉल्ड यू एंड दे सेड चलो सोनू सर आपके साथ करना है हमें, पहले इंस्टेंटली स्क्रिप्ट की तरह यस या फिर थोड़ा टाइम लगाया? नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम वी आर ऑल ऑन आवर टोस. मुझे भी एकदम रोडी टाइप की फीलिंग आ रही थी. पहले तो हम लोग टीवी पे देखते थे, इंस्पायर होते थे, और मुझे लगता है कि देश का हर बंदा चाहता है कि मैं रोडीज का हिस्सा बनूं, क्योंकि मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ता है. कई बार सोने की सही जगह नहीं मिलेगी, कई बार लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, कई बार खाने का कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यू हैव टू सर्वाइव. और उस सर्वाइवल के अंदर आपको वो सब टास्क करने हैं जो बहुत ही मुश्किल हैं और बहुत एक्साइटिंग है. बट आई थिंक जब वो कर पाते हैं तो वो रोडीज होते हैं, और जो करना चाहते हैं वो अगले सीजन का इंतजार करते हैं कि बॉस कब मौका मिलेगा और कब मेरा नंबर आएगा. आपके साथ कोई भी डिस्कशन फिटनेस के बिना हो ही नहीं सकती सर. आप ये जो टास्क और डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा. जब रेडियो में मैं शो कर रहा था और दबंग के बाद मैंने अगले दिन आई कॉल्ड सोनू सर सुबह 6 बजे. दबंग फ्राइडे को रिलीज हुआ, सुबह 6 बजे भी कॉल्ड सोनू सर एंड ही वाज इन द जिम. मैं कहा सर कल तो पिक्चर रिलीज हुई है. कहते हाँ बट नाउ आई एम इन द जिम, विल चैट इन सम टाइम आल्सो. आपका डिसिप्लिन इसके लिए वैसे तालियां हो जाए, बिकॉज दिस मैन इज ए प्रतीक ऑफ एग्जैक्टली हाउ यू शुड ऑलवेज बी. तो ऐसे कुछ ज्ञान दिया आपने कई बार इनको, बिकॉज बहुत जरूरी हो जाता है. यू नो लोग हार मान जाते हैं. समवन लाइक यू नेवर लेट्स गो. पिछले 2 साल में तो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है हाउ यू नेवर लेट गो. व्हाट वाज एडवाइस दैट यू गिव देम कि कैसे हार नहीं माननी है? देखो ये सब लोग ज्ञानी हैं वैसे ही, मैं क्या ज्ञान दूंगा इन लोगों को. लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी विच आई थिंक द होल नेशन विल सी, कि जो बदलाव आता है एक्सपीरियंस से, हर रोज़ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो उससे चेंज आता है आपकी लाइफ में, वो बड़ा एक्सपीरियंस कमाल का होता है. और वो आप लोग महसूस करते हैं. आई एम श्योर सब लोगों ने वो देखा है खुद के अंदर, और मैंने इनके अंदर देखा. आई स्टिल रिमेंबर जो मैं फर्स्ट एपिसोड जब हम लोग शूट कर रहे थे रोडीज़ का, तो सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे. उनका एक बोलने का तरीका था, रिएक्ट करने का, हर चीज़ अलग था. और जब आखिरी हमने पूरा सीजन ख़त्म किया, मुझे लगता है कि अलग लोग बनकर निकले. That's true. That always happens. Big round of applause for yourselves also. शुरुआत में ऐसे आते हैं जैसे boot camp होता है ना. You come in like think I'm going to take over the world, and then you realize halfway कि भाई the world is very large. इतना छोटा ही से हम लोग कर ले. But the toughest thing that you found about being a host also, sir. इनकी तकलीफों के बारे में तो बात करेंगे ही, but आपके लिए कुछ मुश्किल था? मुझे एलिमिनेशन वाले दिन बड़ा डर लगता था यार. इन लोगों को तो डर लगता था, लेकिन मुझे और इसलिए टेंशन आता था. मैं कि यार ये ना जाए यार, रोक लूँ मैं इनको यार. बड़ी कोशिश करता था मैं कि कुछ ऐसा फॉर्मेट बना दे यार, ये ना जाए. आई थिंक
दैट्स व्हाट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट, बट वो भी एक सच्चाई है। बोलते हैं कि हमें ज़िंदगी में बहुत बार एलिमिनेशन मिलते हैं, हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और फिर कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ें आती हैं कि हम लोग लाइफ की उस रेस से थोड़े समय के लिए एलिमिनेट होते हैं और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि वापस जो ज़िंदगी है रोड पर लेकर आनी है। सबने देखा है, एज एक्टर्स हमने, आपने, सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कई बार पटरी से गाड़ी उतरती है और हम लोग मेहनत करके वापस पटरी पर लेकर आते हैं। रोडीज़ भी वही है कि जब कई बार एलिमिनेट होते हैं तो आपको लगता है यार कुछ कमी रह गई है, बॉस वापस मेहनत करूँगा, और फिर वापस आप आते हो या फिर इंतजार करते हो कब आने हो। आई थिंक वो एक रोडीज सिर्फ एक शो नहीं है, एक जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है। True. एक एक तजुर्बा है कि आप देखते हैं कि बॉस किन मुश्किल तरीकों से हम लोग निकलते। जब हम लोग कॉलेज में थे हमने सब एक्सपीरियंस किया, और आज जब हम वो पूरा डॉक्यूमेंटेड देखते हैं और इतनी बड़ी लंबी जर्नी देखते हैं, मुझे आई रिमेंबर कि वी स्टार्टेड फ्रॉम पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका के कोने से शुरू किया, केप टाउन तक हम लोग गए। पूरी जो जर्नी थी वो इतनी कमाल की थी कि मुझे फिल्में बहुत शूट की, आउटडोर्स भी बहुत किए, बट आई कैन वाउच कि रोडीज का जो एक्सपीरियंस था वो सबसे कमाल था, एंड ऑल थैंक्स टू दीस गाइस आल्सो। वाओ, गिव योरसेल्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। सोनू सर का इमोशनल साइड भी हम देखेंगे जब आएंगे वो एलिमिनेशंस पर, जब हम देखेंगे। लेकिन आई एम गिविंग यू ऑल अ चांस आल्सो। चलो, हम तो आपसे सवाल करते हैं, बट वन क्वेश्चन दैट यू ऑल वुड लाइक टू आस्क सोनू सर, यू ऑल हैव मेट हिम ड्यूरिंग द एंटायर बिट। एक सवाल। यस, गो अहेड। I would like to ask Sonu sir, who is your favorite contestant? वाह, सर ये मैं बताता हूँ मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट जो हमारे डायरेक्टर अंकित थे वो है। हमारे डायरेक्टर मुझे बहुत जल्दी बुलाते थे, आजा बॉस रेडी है, कैमरा रोलिंग है, मैं बैठा हूँ, आप भी आएगा। अभी अंकित किधर है, दिख रहा है कहीं पे? आई थिंक यहीं पे है हमारे डायरेक्टर साहब भी। हाय अंकित, क्या हाल है? सो वो है मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट, और मुझे लगता है आप लोगों का भी वही है ना। ये देखो सोन, देखा क्या जवाब दिया है? ये देखो, 400 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ना ऐसे जवाब रेडी हो रहते हैं। आप लोग के जो सवाल होते बड़े सिंपल थे। बट फनेस्ट मोमेंट फॉर यू सर, मुश्किल मोमेंट्स तो थे जैसे आपने बताया अबाउट जंपिंग, पर ऐसे फन वाले मोमेंट्स भी थे ना, कॉमेडिक मोमेंट्स जो इनके साथ रहे। डू यू रिमेंबर एनी वन ऑफ देम? वी वुड लव टू हियर। बहुत सारे थे। मुझे याद है कि कई बार बिल्डअप बड़ा होता था कि आज का जो टास्क है इतना मुश्किल है, अगर कुछ हो जाएगा, लेट जाना, बहुत ज़्यादा हमला हो सकता है। लेकिन हमारा जो है ना एक लेकिन बहुत है कि यार सब कुछ हो जाएगा, आप खाइए पिए, ये कीजिए, ऐश कीजिए, लेकिन ट्विस्ट। लेकिन उसके अंदर एक कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, उस लेकिन में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। सो आई थिंक उस लेकिन में जब लोग ये शो देखना शुरू करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं ये बोलेंगे जरूर कि जिंदगी बड़ी कमाल की है, लेकिन